Hello friends, a very warm welcome to Ashish Biology. I am Ashish Kumar Das, a student of MSc Animal Biology, University of Hyderabad. So in this video, we are going to discuss about replication of DNA, and this will be the third part of the chapter, that is molecular basis of inheritance. If you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for getting more updates. So if you have not seen the first and second part of the chapter, that is molecular basis of inheritance, I will upload the link in the description box so that you can watch the video. So now let's start. So first of all, before learning, we must see what we will learn today. We will see what is semi-conservative mode of DNA replication. We will see what are the role of different enzymes, different proteins that are involved in the process. We will also see what is leading strand and lagging strand. We will also see where replication always takes place in only in 5 days to 3 days direction, and what is the need of RNA primers. That is, here we are learning the process of DNA replication, that means the synthesis of new DNA strand, but what is the need of RNA primer here, and many more. So let's start. So as I have told, the DNA replication is semi-conservative. So semi-conservative means it is half conserved. So semi means half, conservative means one of the strand is conserved. Okay, conserved means it is restored. Okay, so the semi conservative replication. So when in 1953, that is DNA, that means in 1952, after after designing the DNA double helix model, they thought that is the two scientists, Watson and Crick, that thought that DNA base pairing can play a crucial role in replication. Okay, so they thought that DNA base pairing can play a crucial role in replication. So as you have known, complementary base pairing is there. A purine always pair with a pyrimidine and a pyrimidine always pair with a purine. So उन्होंने देखा था कि जो बेस पेयरिंग है डीएनए का, प्यूरिन विथ pyrimidine and vice versa, it plays a crucial role in replication. So द बेस सीक्वेंस ऑफ ईच स्ट्रैंड, यानी कि आपका जो दो डीएनए स्ट्रैंड है, उसी डीएनए स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस कैन एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. टेम्पलेट मतलब उसके हिसाब से नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा. सो टेम्पलेट, एज द नेम सजेस्ट, इट एक्ट एज टेम्पलेट मीन्स it act as the source, that is the complementary base pairing will takes place and the new strand will be synthesized. So this is called as semi-conservative replication because the parental double helix is half conserved. So where I am telling the parental double helix is half conserved, this is half conserved because one strand retain the identity, okay, and another strand is newly synthesized. So two another models are there, that is conservative mode and dispersive mode. These are not proven, okay, actually these are only assumption, that is conservative mode and dispersive mode. We will see what are these modes here. So in this diagram, आप ये diagram में देख सकते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल. सो तीन मॉडल क्या क्या था. सो पहले साइंटिस्ट लोग तीन मॉडल दिए थे, फिर उन्होंने आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इट वाज प्रूव्ड दैट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इज द एक्चुअल मॉडल ऑफ द रेप्लिकेशन और एक्चुअल मोड ऑफ रेप्लिकेशन यू कैन से. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड पिंक कलर में रिप्रेजेंटेड है. फिर पेरेंटल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गया, दोनों जगह एक एक पिंक आ गया. फिर एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस हुआ, ब्लूइश कलर का आप लोग देख सकते हैं. सो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड हुआ. सेमी कंजर्वेटिव मोड हुआ मतलब कैसे, एक पिंक स्ट्रैंड आ रहा है, दूसरा ब्लू स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसिस हो रहा है. सो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं the parental DNA strand is half conserved. Okay, half conserved means half of the strand is there in the new strand, half of the is the parental and the another half is the newly synthesized. Similarly after second replication cycle also you can say, आप दूसरा replication cycle में भी देख सकते हैं कि जो पिंक कलर का था एक ही स्ट्रैंड हुआ है अभी और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ. यहाँ पे ऐसे ये ब्लू कलर का जो है, ब्लू कलर में से दो सिंथेसाइज्ड हुआ. ओके, फिर यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे भी है, आपको रिप्रेजेंट हो रहा है. फिर आते हैं हम लोग कंजर्वेटिव मॉडल में. सो कंजर्वेटिव मॉडल में क्या है, देखिए आप लोग पेरेंटल स्ट्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया, फर्स्ट एप्लीकेशन साइकिल में टोटल पेरेंटल स्ट्रैंड यहाँ पे आ गया, फिर ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस पूरा हो. सो कंजर्वेटिव मॉडल मीन्स एक स्ट्रैंड एंटायरली इट विल बी कंजर्व. ओके, सो यहाँ पे आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पूरा कंजर्व है और ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है. फिर यहाँ पे आ गया हम लोग
ये पूरा कंजर्व्ड हो गया और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया। सो दिस वाज कंजर्वेटिव मॉडल। देन आता है डिस्पर्सिव मॉडल। ओके, डिस्पर्सिव मीन्स एज द नेम सजेस्ट, नाम से पता चल रहा है दोस्तों, डिस्पर्सिव मतलब टूट जाएगा, खंड विखंडित आप लोग बोल सकते हैं, टूट जाएगा, टुकड़ों में बंट जाएगा और फिर वो लोग रीजॉइनिंग हो जाएंगे। सो डिस्पर्सिव मॉडल वाज ऑल्सो abandoned. Okay, so how it was rejected we will see also. So after first replication cycle you can see pink person is there, again blue person is there, pink person is there, again bluish person is there, again pink person, again bluish person. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्पर्सिव यानी कि टुकड़ा टुकड़ा है, लेकिन ये फॉल्स प्रूफ है। यहाँ पे भी आप लोग नीचे देख सकते हैं ये केसेस सेमी कंजर्वेटिव इज द मोस्ट एडवांस, दैट इज सॉरी मोस्ट एक्सेप्टेड वन, वी विल सी। सो यहाँ पे आते हैं रेप्लिकन एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आया डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। सो ये जानने से पहले दो साइंटिस्ट थे। ओके, दो साइंटिस्ट का, उनका नाम था मेजेल्सन एंड स्टाल। ओके, सो एक साइंटिस्ट का नाम था मेजेल्सन, दूसरा साइंटिस्ट का नाम था स्टाल। सो दे प्रूव्ड द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड देयर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज ई कोलाई। ई कोलाई के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। सो यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं, सो ग्रो बैक्टीरिया इन एन दैट इज हैवी मीडियम N15 और यहाँ पे इन लाइट मीडियम N14। सो N15 ब्लू कलर में है, N15 है आपका ब्लू कलर में और N14 है आपका रेड कलर में। ओके, सो यहाँ पे आप लोग फिर देख सकते हैं सैम्पल्स आफ्टर 0 मिनट। सो यहाँ पे सैम्पल है आपका sample after 0 minute. So all the DNA strands are heavy. So when E. coli was grown in the nitrogen medium, so आपको पता है नाइट्रोजनस बेस होता है, so सारा नाइट्रोजन यहाँ का N15 हो गया, क्योंकि आपको जो मीडियम में आपको प्रोवाइडेड है वो है N15, दैट इज हैवी आइसोटोप। सो स्टूडेंट ऑलवेज कन्फ्यूज देमसेल्फ विथ हैवी एंड रेडियो एक्टिव। सो हमेशा याद रखिए कि N15 जो है आपका वो हैवी आइसोटोप है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, वो हैवी आइसोटोप है। सो पेरेंटल स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ आफ्टर 20 मिनट्स। सो व्हाई यू आर टेकिंग आफ्टर 20 मिनट्स, हम यहाँ पे 20 मिनट के बाद इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ई कोलाई का डीएनए रेप्लिकेशन के लिए 20 मिनट लगता है। सो 20 मिनट के बाद आप जब देखेंगे, सो यहाँ पे आपका डेंसिटी, आपको इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलेगा। सो ये डेंसिटी किस मीडियम में हम लोग ले रहे हैं, CsCl डेंसिटी ग्रेडियंट। सो CsCl यानी कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में हम लोग ले रहे हैं। सो जब आप लोग सीजियम क्लोराइड लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए आप लोग सीजियम क्लोराइड ले लेंगे, तो पहले क्या होगा, जो डेंस सीजियम क्लोराइड होगा वो ऑब्वियसली नीचे जाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, और लाइटर सीजियम क्लोराइड हमेशा ऊपर रहेगा। सो डेंसिटी मीडियम में अगर हम कोई एक सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं तो अप्रोप्रिएटली उसी डेंसिटी के हिसाब से वो भी खुद को अरेंज करेगा टेस्ट ट्यूब में। मान लीजिए आप एक बकेट ले लिए, बकेट में आप कुछ डेंस मटेरियल ऐड किए, यानी कि आप लोग ऐड कर लीजिए कुछ पत्थर और फिर पानी है उसमें, तो पानी का डेंसिटी थोड़ा कम है पत्थर से, तो पत्थर नीचे चला जाएगा। फिर आप पत्थर डाल रहे हैं तो पत्थर नीचे ही जाएगा। थोड़ा आप लाइट सब्सटेंस, मान लीजिए थर्मोकोल आप लोग ले रहे हैं, थर्मोकोल दे दिए ऊपर ही रहेगा। सो इसी हिसाब से CsCl डेंसिटी ग्रेडियंट में उन्होंने किया था अपना एक्सपेरिमेंट। सो फिर जब देखा गया आफ्टर 20 मिनट्स दे गॉट एन इंटरमीडिएट डेंसिटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी। फिर आफ्टर 40 मिनट्स, दैट इज आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन, उन्होंने देखा एक आपका है इंटरमीडिएट डेंसिटी, यानी कि N15 N14 का इंटरमीडिएट डेंसिटी, और ऊपर है N14 का लाइट डेंसिटी। सो यहाँ पे जो डेंसिटी आ रहा है N15 का डेंसिटी और नहीं है वहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि और N15 स्ट्रैंड नहीं रहा। फिर एक आ रहा है आपका इंटरमीडिएट आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन, इंटरमीडिएट एक आ रहा है, यहाँ पे रहा आपका N15 N14 हाइब्रिड, और N14 पूरा ऊपर रहा। सो सेकंड जनरेशन में हाफ इंटरमीडिएट एंड हाफ दैट इज लाइट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट आफ्टर 2 जनरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में है आपका N15 और यहाँ पे N15 N14 है यहाँ पे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है आपका 2 स्ट्रैंड दैट इज इंटरमीडिएट और 2 स्ट्रैंड है आपका लाइट स्ट्रैंड। सो यहाँ पे प्रीवियस में जो था, आप कलर से कंफ्यूज मत होइए, कलर इसीलिए सिर्फ दिया गया है क्योंकि ताकि आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाए, यानी डिस्टिंग्विश मतलब N15 और N14 को डिस्टिंग्विश कर पाए। सो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कंक्लूजन यही मिल रहा है कि अगर ये कंजर्वेटिव होता तो एक N15 बना ही रहता और N14 दूसरा बनता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हाइब्रिड बन रहा है। हाइब्रिड इसीलिए बन रहा है क्योंकि ये सेमी कंजर्वेटिव है। सो द पैटर्न कुड ओनली हैव बीन ऑब्जर्व्ड इफ ईच DNA मॉलिक्यूल कंटेन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड।
from the parental DNA and thus the DNA replication is semi conservative. So semi conservative यहाँ पे क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि N15 जो आपका था डुप्लेक्स DNA पहले जो आप हेवी लिए थे वो सेपरेट हो गया 2 स्ट्रैंड में, और फिर न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ जो N14 है उसका बेस पेयर में. ओके, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेंसिटी. यहाँ पे आप यू कैन बेटर विजुअलाइज हियर. सो लाइट डेंसिटी, बोथ स्ट्रैंड लाइट डेंसिटी ज़्यादा होगा. 2 स्ट्रैंड हैवी है तो डेंसिटी यहाँ पे नीचे है ज़्यादा होगा. फिर यहाँ पे है आपका इंटरमीडिएट डेंसिटी, दैट इज लाइट एंड हैवी. आप कॉलर से देख सकते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी बीच में आ रहा है दोनों का, और लाइट डेंसिटी पूरा ऊपर आ रहा है, हैवी डेंसिटी नीचे आ रहा है. सो हैवी डेंसिटी यहाँ पे मतलब N15, लाइट मतलब N14, और इंटरमीडिएट मतलब N15 एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड N14. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं N15 और N14 है आपका. सो डेंसिटी यहाँ पे 100% दिखा रहा है हैवी का. फिर बाद में इंटरमीडिएट आया, और जैसे ही आप लोग टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम 40 मिनट जब हो गया, टाइम 40 मिनट में और कोई भी हैवी स्ट्रैंड नहीं है तो ये एम्प्टी हो गया आपका. फिर हाइब्रिड लेकिन है, तो हाइब्रिड का डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ हाइब्रिड विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज हाइब्रिड स्ट्रैंड बस 2 ही रहेगा. हाइब्रिड स्ट्रैंड तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो 2 स्ट्रैंड है आपका हैवी स्ट्रैंड वो बस 2 स्ट्रैंड में ही रह सकता है ना, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो करके. सो ये नीचे ही रहेगा, यानी कि बीच में, मतलब ये जो आपका रेड लाइन आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे वो पतला होते जा रहा है. लेकिन N14 का जो जनरेशन आप देख रहे हैं, यानी कि डेंसिटी देख रहे हैं, वो धीरे धीरे डार्कन होते जा रहा है. डार्कन मतलब यानी कि मोर एंड मोर प्रोपोर्शन ऑफ द DNA आर हैविंग N14 दैट इज स्ट्रैंड, यानी कि लाइट स्ट्रैंड. फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका रेप्लिकन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, यानी कि जब डीएनए रेप्लिकेशन का शुरुआत होता है, डीएनए रेप्लिकेशन डू नॉट स्टार्ट्स एट रैंडम साइट, दे स्टार्ट्स एट पार्टिकुलर साइट. ओके, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वहाँ पे स्टार्ट होता है, इसको बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यहाँ पे क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर साइट में क्यों स्टार्ट होता है. जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो. सो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि ए और टी एडेनिन और थायमिन के बीच 2 बेस पेयर रहता है, और जी और सी के बीच 2 हाइड्रोजन बंड रहता है ए एंड टी के बीच, एंड जी एंड सी के बीच 3 हाइड्रोजन बंड रहता है. सो 2 हाइड्रोजन बंड अगर रहेगा तो उसको तोड़ने में आसानी रहेगा. दैट्स व्हाई एट ए पर्टिकुलर साइट, एंड दैट पर्टिकुलर साइट दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज 80 रिच. सो रिमेंबर दिस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज 80 रिच. ओके. Then replicon is the unit of replication consisting of an ori and a terminus site where replication ends. So replicon means the unit of replication. So it consists of an ori site and a terminus site. Terminus means आप नाम से पता कर सकते हैं, terminal मतलब वहाँ पे replication end होगा. So unit of replication is called replicon and it is having a ori site and a that is terminus site where the replication ends. देन प्रोकैरियोट्स में ये यूनिरेप्लिकोनिक होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स का जीनोम छोटा रहता है, आप लोग पढ़ चुके हैं. यानी कि बैक्टीरिया में ये सब में उनका डीएनए सीक्वेंस बहुत छोटा, यानी कि लेंथ बेस पेयर वेरी फ्यू होता है. जैसे कि हम लोग देखे थे पहले ही 574 में, अल्फा 17 बैक्टीरियोफेज में, ये सब में देखे थे हम लोग, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज में वहाँ पे कम रहता है. सो दे आर यूनिरेप्लिकोनिक, यानी कि ओनली 1 सिंगल origin of replication. But in eukaryotes they are multi-repliconic, means more than one that is origin of replication. And in yeast, that is your Saccharomyces cerevisiae, the origin of replication are called as ARS, यानी कि autonomously replicating sequences. So you no need to remember all these things, only you remember prokaryotes are monorepliconic and the eukaryotes are multi-repliconic. Then semi-conservative model of replication was proved by Michelson and Stahl, ये हम लोग देख चुके हैं. Then similar experiment by Taylor on Vicia faba, that is faba beans. Taylor et al. Means Taylor along with his co-scientist proved that semi-conservative model also holds good in case of plants, and they work on faba beans, that is scientific name is Vicia faba. So first we will see what are the enzymes involved in the process of replication. So first is DNA dependent DNA polymerase. This is the most crucial enzyme. Okay, so in eukaryotes there are 3 DNA dependent DNA polymerase, and the most important, that is the that is doing most function is the DNA polymerase third. There are 3 replication enzyme 1 2 3, and the third is the most, that is most important, or you can say it is doing most of the function. Then
व्हाई दिस इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर ही, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस, सॉरी द न्यू डीएनए स्ट्रैंड का जो सिंथेसिस करेगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देन हेलिकेज, हेलिकेज मतलब हम लोग स्ट्रैंड को ऑन वाइंडिंग करेंगे, ऑन वाइंडिंग मतलब ओपनिंग, डीएनए स्ट्रैंड कॉइल्ड होगा, यानी कि आपका डबल हेलिक्स कॉइल्ड होगा वन ओवर अनदर, सो दैट मस्ट बी अनवाइंडेड, यानी कि ओपन्ड बिफोर द that is the replication, so that's why this is unwinding of the double helix is done by helicase. Then primase, that is synthesis of RNA primer, so RNA primers will be synthesized at the origin of replication. So why this is necessary, because आपका जो DNA dependent DNA polymerase है, it can only catalyze the reaction in 5' to 3' direction, because 5' to 3' direction मतलब it can add the that is 5' आपका जो 3' OH होगा उसके साथ 5' फॉस्फेट का एडिशन करेगा डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि द इनकमिंग 5' फॉस्फेट विल बी एडेड टू द एग्जिस्टिंग 3' OH एंड ऑफ द शुगर, दैट्स व्हाई दिस इज द आपका जो है 5' to 3' में कैटालाइज करता है, बट द प्रॉपर्टी इज दैट इट कैन ओनली ऐड द DNTPs, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ओनली वो ऐड कर सकता है, दैट इज ओनली टू एग्जिस्टिंग 3' OH, 3' OH आपको चाहिए, एग्जिस्टिंग चाहिए, दैट्स व्हाई सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर इज एसेंशियल, आरएनए प्राइमर सिंथेसिस होगा, 3' OH उसका फ्री होगा, वहाँ पे 5' फॉस्फेट के ऐड होगा और द प्रोसेस कंटिन्यू होगा। देन लाइगेज जॉइनिंग ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्या है हम डिटेल्स में देखेंगे अभी। देन टोपोइसोमेरेज, जैसे कि आपको पता है आप एक रस्सी को लेके उसको मतलब उसका जो 2 स्ट्रैंड रहता है उसको आप खोल रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है और रस्सी ज़्यादा कोयलिंग हो जाता है, सो टोपोइसोमेरेज रिड्यूस द टेंशन और it reduce the coiling strength that is created at the that is unwinding point. Okay, so come to the process, that is the process, detailed process of the replication. So this is a energy expensive process, that means it requires energy. DNTP, that is deoxyribonucleotides triphosphate, serve as the dual purpose of the acting as substrate and providing energy, so that is providing energy is by alpha and beta phosphate, सॉरी बीटा एंड गामा फॉस्फेट। सो जैसे कि हम देख चुके हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा आपका ये आपका राइबोज शुगर के साथ अटैच होता है 3 फॉस्फेट अल्फा बीटा एंड गामा, सो द नियरेस्ट इज द अल्फा, दैट इज नियरेस्ट टू द शुगर इज द अल्फा एंड अदर 2 एट बीटा एंड गामा रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी okay, alpha is retained and the beta and gamma is released during the replication, so the intertwined separates at ori, the intertwined DNA intertwined strand होगा यहाँ पे मिस हो गया, intertwined strand separates at the ori, that is origin of replication, so as the 2 strands can't be separated across the entire length, पूरा हम लेंथ में इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि टेंशन क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि हम रस्सी को पूरा खोल नहीं सकते उसी प्रकार आप इसको इमेजिन कीजिए। सो रेप्लिकेशन अकर्स विथ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ओके, अकर्स विथ स्मॉल ओपनिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क, द वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाई शेप स्ट्रक्चर। देन द डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज catalyze polymerization in only 5' to 3' direction, why I have already told, because it can add only phosphate group to the that is 3' OH existing के साथ इनकमिंग ग्रुप का 5' फॉस्फेट ऐड होता रहेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी catalyzing only in the 5' to 3' direction, so the leading strand will be with polarity 3' to 5', यानी कि जिस स्ट्रैंड का पोलरिटी 3' to 5' रहेगा वहाँ पे आराम से पॉलीमरेज रिएक्शन को कैटालाइज करेगा प्राइमर सिंथेसिस होने के बाद, एंड दैट्स व्हाई this is called as leading strand, and the lagging strand will be 5' to 3' polarity, that is with Okazaki fragment, 5' to 3' polarity and that will be with Okazaki fragment. Actually Okazaki fragments ये होता है क्योंकि जिस स्ट्रैंड का पोलरिटी 5' to 3' है वहाँ पे कंटिन्यूसली सिंथेसिस नहीं हो सकता, सो प्राइमर धीरे धीरे क्रिएट करेगा, प्राइमर सिंथेसिस होगा, फिर डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा, फिर प्राइमर सिंथेसिस, दैट्स फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेटेड एंड दिस फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड एज that is Okazaki fragments, and DNA ligase joins the Okazaki fragments. Okay, DNA ligase has the function of joining the Okazaki fragments. So एक बार डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ये है आपका वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क, पोलरिटी यहाँ पे है आपका
3 days to 5 days, यहाँ पे देख सकते हैं 3 days to 5 days, और इसका पोलरिटी है 5 days to 3 days। सो जिसका पोलरिटी 3 days to 5 days है वहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड आरएनए प्राइमर आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं सिंथेसिस हो गया, रेड कलर में स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है कैटालाइज्ड बाय द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक उसी तरह यहाँ पे आरएनए प्राइमर सिंथेसिस हुआ, लेकिन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूस, यानी कि ये डिसकंटिन्यूस तो है, यानी कि कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, बस दिस इज ओनली इन वन स्ट्रैंड बट इट इज कॉन्टिन्यूस इन द अनदर स्ट्रैंड। सो डीएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर आपका सिंथेसिस होने के बाद ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आप लोग देख सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बिकॉज दे आर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ओकाजाकी। देन आपका देख सकते हैं अनदर प्राइमर सिंथेसिस होने के बाद अनदर स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रहा है। और एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज इज देयर, आरएनए प्राइमर इज बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड इट इज कैटालाइजिंग द रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका गैप मिलेगा आपको इसका ऊपर, मैंने जो गार दिया उसका ऊपर, फिर यहाँ पे गैप आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड, ओके, दैट इज विद पोलरिटी 5 days to 3 days, एंड दिस स्ट्रैंड इज द लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, सो आरएनए प्राइमर सिंथेसिस एंड द polymerization is going on. Okay, so primase is there, helicase is there. Primase means it will synthesize the RNA primers, helicase will do unwinding। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोपोआइसोमेरेज, एक्चुअल पोजीशन टोपोआइसोमेरेज का जहाँ पे अनवाइंडिंग हो रहा है थोड़ा सा आगे है उसका, यानी कि इट विल रिड्यूस द टेंशन। और आपका पेरेंट डीएनए देख सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट डीएनए का एक स्ट्रैंड रहेगा, ये पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड है, और ऊपर का जो आपका स्ट्रैंड है यह है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। यहाँ पे भी पेरेंट डीएनए का ओरिजिनल डीएनए है और ये न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। Thank you. This is the end of the video. Thank you for watching. I will soon upload the next part of the video. Till then, take care. Thank you.